Hello everyone, welcome to my channel. My channel name is Biosimplified with Bharat sir, and today we are going to talk about embryo. In my previous video, we have discussed about endosperm and the type of seeds. Okay, now only one thing is left in this. In this part, one thing is left, that is embryo. Okay, now today we are going to talk about the embryo. In the embryo, when we are talking about the embryo, once fertilization, the second fertilization, okay, let's write that. when second male gamete when second male gamete fuse with egg cell present where in the embryo sac. ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा, ड्रॉ करके बताऊंगा. ठीक है, तो सेकेंड मेल गैमेट जब एग सेल के साथ फ्यूज होता है, what it is formed, zygote. And once the zygote is formed, this zygote is going to convert, it is going to develop into the embryo. The zygote is going to develop into the embryo. What that process is called, that process is called embryogenesis. What it is called? Embryogenesis. What is embryogenesis? In which zygote is going to develop into the embryo. And in our previous videos we have discussed, in endosperm part we have discussed that zygote will take the nutrition and then it will develop into the embryo. Okay, so that was the process, and this process is called embryogenesis. So in this part we are going to talk about that how embryo is going to form, and once the embryo is formed, then how the embryo is going to mature and what are the parts of embryo. These are all things we are going to talk about. Let's talk about this. So in this we need to know, this is embryo sac, and this embryo sac is present in the ovule. Okay, it is a one of the part. In this embryo sac, here these three things are there. The middle one is egg cell, and here three cells are there, we are calling them antipodal cells. And यहाँ पे ये दो पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं. ठीक है, these are polar nuclei. ये बात करी है हमने, बहुत बार बात कर चुके हैं. ठीक है, तो first fertilization is takes place here, and the result of fertilization is endosperm, that we have already discussed in the previous parts. And in this, what we are going to talk about in this video, in this part, we are going to talk about this. This is the second male gamete. This is second male gamete, and this cell is egg cell. Now second male gamete and egg cell. ठीक है, what it will make zygote, that I have already written. तो zygote कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है. तो अब जो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, ये रहा zygote. मान लो ये है zygote. ठीक है, और ये zygote कहाँ बना है? Where it is formed? Here. What is the end? This end is called micropylar end. This end is called, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोपाइल होता है ना, तो इस एंड को क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइलर एंड बोल रहे हैं. ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो पूरा प्रोसेस कहाँ होने वाला है? यहाँ इस प्लेस पे होने वाला है. ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर दिस होल थिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस. ये मैंने पहले से इसलिए बना रखा है क्योंकि फिर ये सब बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले से ही बना के रखा है इसको. और अब बात करते हैं इस प्रोसेस की कि कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट से. ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग द एनसीईआरटी. ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है. तो जाइगोट बनेगा. अब जाइगोट में डिवीजन होगा. कौन सा डिवीजन होता है जाइगोट में? जाइगोट में एक डिवीजन होता है जिसको बोल रहे हैं द टाइप ऑफ डिवीजन दैट इज कॉल्ड माइटोसिस. व्हाट इट इज कॉल्ड? माइटोसिस. और माइटोसिस से तो आपको पता है जाइगोट से क्या बन रहा है? एक सेल से कितनी बनती है? दो सेल बनती है. ये दो सेल बनी. नीचे वाली सेल को टर्मिनल सेल बोल रहे हैं, ऊपर वाली सेल को बेसल सेल बोल रहे हैं. अब इन दोनों में डिवीजन होगा. ठीक है, तो पहले बेसल सेल में क्या होना है? डिवीजन होना स्टार्ट होता है. बेसल सेल में ये वाली, इस सस्पेंसर इनिशियल सेल भी बोलते हैं. इसको क्या बोल रहे हैं? सस्पेंसर इनिशियल सेल. व्हाई? बिकॉज दिस सेल इज गोइंग टू डेवलप द सस्पेंसर. व्हाट इज सस्पेंसर? दिस पार्ट, दिस होल थिंग व्हिच कंटेन्स 6 to 10 cells, दिस पार्ट इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल. तो दिस बेसल सेल और सस्पेंसर इनिशियल सेल, इसमें क्या होने वाला है? डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पे एक बड़ी सी सेल बनेगी.
तो इस वाले पार्ट को, दिस पार्ट इज कॉल्ड सस्पेंसर। इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं? सस्पेंसर बोल रहे हैं, ठीक है। और ये वाली एक बड़ी सेल है, लार्ज सेल, जो इससे डेवलप हुई है, ठीक है। कौन से वाली सेल से? बेसल सेल से डेवलप हुई है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट दिस टर्मिनल सेल? दिस टर्मिनल सेल विल आल्सो हैव अ माइटोसिस। इसमें और ज्यादा माइटोसिस होगा और 3 टाइम्स माइटोसिस होगा। मतलब एक से कितनी, एक सेल से कितनी बनेगी? 2, 2 से कितनी बनेगी? 4 बनेगी, 4 से कितनी बनेगी? 8 बनेगी, 8 बनने वाली है। तो यहाँ पे 8 सेल्स आप देख सकते हो। मैंने डायरेक्टली 8 सेल वाला पार्ट बनाया, ठीक है। इस सेल में कितनी बार माइटोसिस होने वाला है? 3 टाइम्स इट विल टेक, यू नो, एंड 1 टाइम फ्रॉम द 1 2 2 to 4 4 to 8। एंड राइट नाउ यू कैन सी, इससे ये वाला पार्ट बना, तो ये वाले पार्ट में कितनी सेल्स है? 8 सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये जब एम्ब्रियो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो इस एम्ब्रियो को क्या बोल रहे हैं? इस एम्ब्रियो को यहाँ ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। इस एम्ब्रियो को बोल रहे हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है। व्हाट दैट एम्ब्रियो इज कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये प्रो एम्ब्रियो, ये वाला फेज, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फेज क्या चल रहा है? प्रो एम्ब्रियो वाला, क्योंकि अभी मैच्योर नहीं हुआ ना, मैच्योरिटी आ रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रो एम्ब्रियो वाला फेज है। अब ये वाले पार्ट को, क्योंकि स्पेरिकल है, गोल है, ठीक है, तो इसलिए ग्लोब्यूलर बोल दिया है इसको, ठीक है। फिर इसमें ये वाला पार्ट ग्लोब्यूलर पार्ट, इस वाले पार्ट में और ज्यादा डिवीजन होता है। तो आप देखो ये नीचे वाला पार्ट, ये तो सस्पेंसर है ही है, सेम सेम थिंग, ये सस्पेंसर वाला पार्ट है पूरा, ठीक है। बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है, देखो इससे ग्लोब्यूलर से, ठीक है। और ये हार्ट शेप दिख रहा है, इन्वर्टेड हार्ट शेप। तो दिस एम्ब्रियो इज कॉल्ड हार्ट शेप्ड, this is called heart shaped pro embryo. It is pro embryo because still it is not matured. फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? और इसमें डेवलपमेंट होगा, ये वाले पार्ट और ज्यादा डेवलप होंगे, एंड देन द एम्ब्रियो विल, हाँ, तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो बोल रहे हैं क्योंकि अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। एंड देन ये वाले जो पार्ट है, ये वाले पार्ट ग्रो होंगे, और जब ये वाले पार्ट ग्रो होंगे तो ऐसा कुछ एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और जब एम्ब्रियो ऐसा दिखने लग जाए, ऐसा स्ट्रक्चर हो उस एम्ब्रियो को, तो उस एम्ब्रियो को बोलते हैं, दैट एम्ब्रियो इज कॉल्ड मैच्योर एम्ब्रियो। दैट एम्ब्रियो इज कॉल्ड, नाउ इट इज नॉट प्रो एम्ब्रियो, इट इज अ मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। इन दिस एम्ब्रियो, दिस होल पार्ट, यू नो व्हाट वी आर कॉलिंग, इट इज कॉल्ड सस्पेंसर। क्या बोल रहे हैं इसको? सस्पेंसर बोल रहे हैं। यहाँ वाला पार्ट, ये दोनों को क्या बोल रहे हैं? दिस पार्ट, दिस होल थिंग, यू नो, बिगर थिंग्स, वी आर कॉलिंग देम कॉटिलिडन्स। इनको कॉटिलिडन बोल रहे हैं। एंड हियर बिटवीन द कॉटिलिडन, हियर दिस पार्ट इज कॉल्ड प्लीम्यूल। एम्ब्रियो का पार्ट होता है ना, प्लीम्यूल। और यहाँ कहीं पे ये जो सेंटर में यहाँ वाला पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल। बाकी आपको पता है प्लीम्यूल शूट को ग्रो करता है और रेडिकल रूट को ग्रो करने वाला पार्ट है, और ये एम्ब्रियो मैच्योर है, ठीक है। तो ऐसे पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको आना चाहिए, जिसमें आपको ये डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। जैसे जायगोट है, जायगोट से बेसल और टर्मिनल सेल्स दे विल डिवाइड, एंड दिस इज हाउ द प्रो एम्ब्रियो इज फॉर्म। दीज ऑल आर प्रो एम्ब्रियोज। देन इट विल डिवाइड, इट विल मेक दिस थिंग, इट विल डिवाइड बिकॉज इट इज कॉल्ड सस्पेंशन इनिशियल सेल, तो ये सस्पेंसर बनाएगा। और फिर आगे जाके ये ग्लोब्यूलर वाला पार्ट और ज्यादा डिवाइड होगा, ये ऐसा हार्ट शेप स्ट्रक्चर प्रो एम्ब्रियो बनेगा। फिर हार्ट शेप स्ट्रक्चर वाला पार्ट और ज्यादा ग्रो होगा, लुक लाइक दैट, एम्ब्रियो इज लुक लाइक दैट। व्हेन इट इज लुक लाइक दैट, that embryo is called, you know, mature embryo. And there are certain part in the mature embryo, what these are, this part as usual suspension is there, this one is cotyledon, here and the center plumule, here this part is called radicle, and this is mature embryo. And this is how you should know the development of the embryo. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।